Hello, it's Dr. Bhatt here on the platform. The video aims at providing certain strategies to organize learning in chemistry, along with a few related basic brief outs. What should be the strategy to learn? What are the requirements? We should, in general, know about learning that makes our learning easy. The first objective should be to feel inquisitive, and it will create interest to learn. Now, therefore, we are required to know what is inquisitiveness. One must be inquisitive to learn. A keen and careful observation of occurrences around us causes curiosity to learn and enhance one's understanding or knowledge. The words what, why, and how. Please note what, why, and how provide solutions to our inquisitiveness. It further tends to build up an interest to learn. This holds good for learning any of the subject or any of the topic. Chemistry is not an exception. The inference that chemistry calls up for mugging up is what is known as रटना और गूंथना is faulty. प्राय ये देखा जाता है, अक्सर हम लोग भी स्टूडेंट्स बात करते हैं और कई लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, यार केमिस्ट्री में तो रटना और घोटना बहुत पड़ता है, मगिंग अप करना पड़ता है। ये जो विचारधारा है, ये जो सोच है, ये दोषपूर्ण है, ये सही नहीं है। It's not at all required. Chemistry is a topic which doesn't call for mugging up. Okay. It calls for understanding and learning. Of course, there cannot be any shortcut to learn. Normally, ये देखा जाता है कि लड़के ये बताते हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं, या केमिस्ट्री वाले भी ये बताते हैं, पढ़ाने वाले भी ये बताते हैं, टीचर्स भी ये बताते हैं कि अरे वो तो हम तुमको शॉर्टकट दे देंगे और वो आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट मतलब एक छोटा तरीका याद करने का, समझने का, रटने का, घोंपने का, व्हाटएवर यू कॉल इट, एक छोटा तरीका है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट, और वो केमिस्ट्री बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। नो, इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट। क्या होता है, ये अक्सर गलत हम नतीजे देता है। हम किसी सवाल को जब तक हम समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, उसका पूरे बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, हम किस तरह से उसको हम सही ढंग से सॉल्व कर लेंगे। शॉर्टकट इज नो सॉल्यूशन टू इट। मेनी टाइम्स द शॉर्टकट्स आर मिसलीडिंग। और केमिस्ट्री को सीखने के लिए शॉर्टकट जरूरी हो ऐसा कोई बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जब किसी भी विषय का कॉन्सेप्ट या समझ अच्छी तरह से हम कर लेते हैं तो वो विषय हमारे लिए आसान हो जाता है, उसको हम आसानी से समझ लेते हैं। We understand it easily, and not only this, it creates interest also. और तब हमें उसको पढ़ने में, उसको सीखने में, उसको समझने में रुचि आती है, creates interest. Therefore, what is most necessary is that
you should be inquisitive to learn. A learner should be inquisitive to learn. And what is meant by inquisitive? Inquisitive से सीधा मतलब ये है कि उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से हमको हमारे लिए यूजफुल है, और कैसे होता है, ये हम जानने के लिए उत्सुक रहे. Only then our learning becomes easy and we get interested. और जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया है, for learning anything, it may be any topic, may be related to physics, may be related to mathematics, may be related to chemistry, or even philosophy, or even English. You put up these words, identify these words, what is happening, why this is happening, and how it happens. If you answer to this, and if you understand this, how you get interested and you can learn it. Then, next point I have to point out before you take up learning any topic, please identify the significance of topic for learning. मान लीजिए हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चैप्टर 10 याद कर रहे हैं, चैप्टर 9 याद कर रहे हैं, तो उस चैप्टर 9, 8, 10 या जो भी है, उसको पढ़ने से हमें क्या आउटकम मिलेगा, उसको पढ़ने के लिए हमें क्या उसके पहले का ज्ञान मालूम होना चाहिए, पहले की बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए. Minded, all the subjects are, all the chapters or all the topics are interrelated. अगर आप किसी भी ऐसी की किताब में या किसी भी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 आपने पढ़ रहे हैं इस समय, तो वो चैप्टर 1 से जरूर रिलेटेड होगा और आपकी जो पहले की पढ़ाई है वो उसमें काम आएगी. Therefore, take your studies seriously and organize your strategy of learning properly. सही ढंग से, सही योजना के साथ अगर हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो हमको पढ़ना या याद करना या समझना किसी भी विषय के लिए बहुत ही आसान हो जाता है. So, what I mean to say, these are the only 2 tools to learn. दो ही चीज है जो कि हमें सीखना है और इससे हम सीख लेते हैं. Even a difficult subject becomes. और एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं और कुछ बात करने के पहले कि आप किसी भी विषय को, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या और भी कोई दूसरा विषय, अलग अलग न माने. कोर्स में है, दिया हुआ है, इसलिए आपको पढ़ना है, भार के रूप में एज ए बर्डन आप उसको टेक अप कर रहे हैं, वो गलत बात है. As far as physics and chemistry are concerned, they are interrelated. कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, और चाहे वो केमिस्ट हो या फिजिसिस्ट हो, फिजिक्स का विद्वान हो, फिजिक्स का ज्ञाता हो या केमिस्ट्री का ज्ञाता हो, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलते हैं. एक एक कॉन्सेप्ट्स दूसरे में आते हैं. ऑफ कोर्स, टेकिंग अप ए पर्टिकुलर टॉपिक, approach is different. फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना पढ़ाता है या पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, वो एक दूसरे अप्रोच से, दूसरे ढंग से हम पढ़ते हैं. फैक्ट तो वही है, एटम जो केमिस्ट्री में है वही फिजिक्स में है, उसके जो डिटेल्स हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कैलकुलेट उतना ही हम फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको हम अलग अलग तरीके से सीखते हैं. और मैथमेटिक्स का जहां तक सवाल है, इट इज सपोर्टर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. I'll say it supports
physics and chemistry both. So no problem. आप देखिए फिजिक्स में भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, और इस तरह से कई एनर्जी चेंजेस हैं जिसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर इंटर रिलेटेड. उसको आप अलग मान करके न पढ़ें तो क्या होगा, उससे आपको इंटरेस्ट आ जाएगा टॉपिक में. फिजिक्स में भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और केमिस्ट्री को पढ़ने में भी. किसी भी सब्जेक्ट को हार के रूप में न लें. ओके, so these are the two basic requirements. You have to be you have to pay a serious consideration to the strategy of learning, how to learn, what are the tools to learn. जब हम फॉर्मली ये तय कर लेंगे कि हमें पढ़ना ही है, हमें सीखना है, हमें ज्ञान बढ़ाना है, हमें नॉलेज बनाना है, तब ये सब चीजें हम बहुत आसानी से पढ़ लेंगे. We are related learning chemistry. How to learn chemistry? और केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है, you should be regular and persistent to practice. नियम से आप किसी भी चैप्टर को रोज पढ़ें, रोज पढ़ें. भले 15 मिनट का टाइम दें, 1 घंटे का टाइम दें, या 1.5 घंटे का टाइम है, डिपेंडिंग टू योर शेड्यूल. आप उसके अनुसार से आप समय दीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर. और पढ़ने के पहले जो आपने पिछली बार पढ़ा है उसको रिवाइज भी करें. A quick revision is very important. Regular and quick revision along with subsequent studies is very important. And not only this, after that, you need to practice it. Practice by way of writing. मैं आपको एक चीज बता दूं, writing makes a man perfect. आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको, पुराना सिस्टम है, अब आजकल तो लैपटॉप और ये टाइपिंग का समय आ गया है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप उसको लिख करके प्रैक्टिस करें इन ऑल डिटेल्स, और लिखें भी ऐसा पूरा सही तरीके से, जैसे आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. और लगातार आप प्रैक्टिस करिए, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे एक्सप्लेनेटरी हो, या शॉर्ट आंसर हो. सब तरह के क्वेश्चन आप नियम से करें और रोज करें, रेगुलर करें. दैट इज द ओनली मेथड टू लर्न केमिस्ट्री प्रॉपर्ली एंड करेक्ट. और पहली चीज तो हमने बता ही दिया है कि शॉर्टकट पर बिलीव न करें. ऐसा है, जब हम उसको सीख लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो हमको याद करने का तरीका तो हम खुद ही शॉर्टकट में बना लेंगे कि भाई इसको हम इस तरह से याद करेंगे, ऐसे हमें याद रहता है, मेमोराइज होता है. Then next I have to give you certain significance about why chemistry. केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना केमिस्ट्री? इसलिए नहीं कि कोर्स में दिया है और शायद वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश और एक कोई दूसरा सब्जेक्ट भी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इसके लिए हमें जानने के लिए उसके एप्लीकेशंस, उसके फायदे को समझना पड़ेगा, उसकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा. और हम देखते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, फिजियोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, पैथोलॉजिस्ट हो, हर एक को केमिस्ट्री
का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दवाई बनाने वाला एक्सपर्ट है, फार्मासिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको भी केमिस्ट्री की नॉलेज होना चाहिए। पैथोलॉजिस्ट है जो आपके जांच करता है रोग की, पैथोलॉजी की, उनको चाहे वो एक्सरे ले, सोनोग्राफी ले या खून की जांच करे, हर एक में केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। और इंजीनियर तो बिना केमिस्ट्री के चल ही नहीं सकता। तो इज द केस विद फिजिशियन। तो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आप समझें क्यों पढ़ रहे हैं। एंड एक्चुअली इट हेल्प्स अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मुझे तो कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई अकरेंस या कोई सिस्टम नहीं समझ में आता जहां केमिस्ट्री का यूज ना होता हो। इवन आवर डेली रूटीन, हम शुरुआत करते हैं सुबह की, और जो भी रूटीन हमारा रहता है, बराबर केमिस्ट्री से संबंधित चीजों का हम उपयोग करते हैं। पानी पीते हैं भी एक जो वाटर है उसकी क्वालिटी ऑफ वाटर, कैसा पानी पिएंगे, आरओ का वाटर पिएंगे, डिस्टिल्ड वाटर पिएंगे या रेन वाटर पिएंगे, क्या पिएंगे, उसकी क्वालिटी हमें डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है। और इस तरह से अगर हम लिस्ट बनावें कि केमिस्ट्री कितना उपयोगी है, तो शायद वो लिस्ट तो बहुत बड़ी और उसको पूरा करना मुश्किल होगा। बट देन देयर आर सर्टेन applications of chemistry in modern. A few applications are given here. इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, write 5 cases for applications of chemistry. What is the utility of chemistry? Discuss the role of application in drugs and medicines. Like that, any type of question may be there. So, agriculture industry uses chemistry, all manures, fertilizers, they are chemical product. Drugs and medicines, तरह तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ये सब केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जैसे बहुत सी दवाइयाँ हैं, ये सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, कैंसर थेरेपी में भी यूज होती है, ब्रीथिंग में भी यूज होती है। कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा और आगे तो हम और पढ़ेंगे। और जैसा कि अभी आप आजकल का आप देख रहे हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोविड-19 कोरोना का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इट शोज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, और उसके लिए हम लोग दवाई, सही दवाई की खोज में हैं, लेकिन अभी तक कोई दवाई हम नहीं निकाल पाए। फिर भी उसके सिम्टम्स को देखते हुए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट, कोरोना से जो बीमारी होती है, जो लक्षण होते हैं, बुखार आता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, ये सांस लेने में दिक्कत होती है, इन सब के लिए रिलीफ एज ए रेमेडियल मेडिसिन, रिलीफ देने के लिए, आराम देने के लिए हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट यूज कर रहे हैं। और ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में बन रहा है, बनाते हैं, और हम लोग को एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर भी भेजते हैं। So what I mean to say is that chemistry is very, very useful in drugs and medicines also. Fertilizers in agriculture industries, different type of acids, alkalis and salts are prepared. And dyes का मतलब रंग, colors, fabrics के ऊपर कपड़े रंगने के लिए या पेंट करने के लिए, या then polymers, प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए, साबुन और डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, मेटल्स एंड एलॉयज, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, एंड लाइक दैट a number of lists is there. Paints and varnishes, cement, sand, and plasters, different type of plasters, ceramics. So many applications are there.
A few applications are here, you need to learn it. इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा. Then coming to, after all, what is chemistry? Chemistry है क्या? As a scientist, we need whatever occurs in the universe. We need universe. Universe means everything surrounding us, including ourselves. हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं और हमको मिला करके उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स. And if you observe properly, you will find that the universe consists of only two great components. उसके दो हिस्से. One is known as matter and the other is known as energy. What is matter? Matter तो बड़ी मामूली सी बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं. 9th क्लास में या इवन 8th में भी पढ़ा है और 10th में और आगे भी पढ़ाएंगे 11th में. That anything which has got weight and volume, mass and volume, that is known as matter. The other part in this universe is energy, which doesn't have any weight and volume. Energy में weight और volume तो नहीं है. क्या है? उसके effect को हम feel करते हैं. Different forms of energies are there. Heat, light, sound, electricity, magnetism, and different forms of energy are realized by us. Effects are there. So, in chemistry, we go and explore the properties of matter. Matter की properties अलग अलग होती है. हर matter अलग अलग तरह का दिखाई पड़ता है. उसके जो characteristics हैं भी अलग अलग. तो हर एक तरह की ऑब्जेक्ट्स को या मैटर को जो उनका की अलग अलग रूप होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसको हम पढ़ते हैं. और जैसा कि हमने आगे पढ़ रखा है पहले भी और हमको मालूम भी है that the ultimate particle of a matter is either atom and molecule. किसी का अल्टीमेट पार्टिकल एटम होता है, किसी मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है. अल्टीमेट मीन्स छोटे से छोटा हिस्सा, which is nothing but a particle. और हम यहीं पर आपको बताना चाहते हैं एटम और मॉलिक्यूल दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अलग अलग मतलब होता है. Atom is related to the smallest particle, tiny particle of an element, and molecule is the smallest particle of a compound. Element कुछ अलग तरह का मैटर होता है और compound अलग तरह का. Elements combine together in certain proportion to form a substance which is known as compound, and these compound have the ultimate particle as molecule. So ध्यान रहे, atom is related to elements and molecule, the word, is related to compounds. अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या है ये हम आगे पढ़ चुके हैं और फिर से हम पढ़ेंगे. और इन्हीं चीजों को देखते हुए, चूंकि अल्टीमेट पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल है किसी भी मैटर का, इसलिए हमने अब केमिस्ट्री को दूसरे ढंग से परिभाषित किया है. इट इज नाउ रीडिफाइंड एज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस. ये वह अध्ययन है जिसमें कि एटम और मॉलिक्यूल और उनका परिवर्तन, एक दूसरे के इंटरेक्शन और रिएक्शंस, ये सब हम पढ़ते हैं. That is chemistry. Chemistry is the science of atoms and molecules, and very important, their transformation. Their transformation means interactions. एक दूसरे से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या बनता है, ये सारी चीजें इनसे हम सीखते हैं. So that is really very interesting.
in all walks of life, had wide applications. So why not get interested and learn chemistry easily? Now, after this, I'll prefer to give you certain brief outs before you study anything else and get into details, further details. Please review whatever you have learned earlier. That is known as re-study. फिर से एक बार आप देख लीजिए certain basics. We have learnt cations and anions. Compounds के अभी हम बात कर रहे थे. Compounds are the substances formed by the interaction of two or more substances. दो चीजें मिलकर रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज बनाते हैं, वो कंपाउंड और कन्वर्जन होता है. तो ये कंपाउंड के दो हिस्से होते हैं. एक हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज. अब वो चार्ज जो है कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सारे डिटेल्स हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे. और क्योंकि हमारा पूर्व ज्ञान है, हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना तो आप रिवाइज कर लीजिए. एक्चुअली compound cations are positively charged. धनायन हिंदी में बोलते हैं. They are positively charged. उसका सिंबल के ऊपर हम धन का चिन्ह लगाते हैं. Pb2 plus Ag plus Hg22 plus मर्क्यूरस. और ये हमने एक लिस्ट दे रखी है. कृपया कम से कम इतना तो याद कर लें. And of course, this is not the only end of cations. You have to learn more number of cations gradually. लेकिन शुरुआत में अभी अभी इन cations को आप याद कर लीजिए. Mercurous, mercuric. Look here, mercurous is Hg2 plus, Hg2 2 positive. Mercuric is Hg2 positive. अब दोनों में क्या अंतर है? Hg is mercury, डाई पॉजिटिव है दोनों में, लेकिन एक में हम मर्क्यूरस बोलते हैं, एक में मर्क्यूरिक बोलते हैं. जो कम चार्ज वाला होता है उसको हम अस बोलते हैं. क्यूप्रस, क्यूप्रिक, लाइक दैट. नाउ ध्यान दीजिए, Hg2 2 पॉजिटिव, मतलब दो एटम मरकरी के संयुक्त हो गए, मिल गए, और दोनों, और तब उनके ऊपर दो पॉजिटिव साइन है. तो एक के ऊपर कितना हुआ? एक. लेकिन हम Hg प्लस नहीं लिखते. इट्स रॉन्ग. कई किताबों में या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मर्क्यूरस इज Hg प्लस. ऐसा नहीं होता. मर्क्यूरस के केस में खास तौर से, और कुछ और ऐसे भी आयंस हैं इसी तरह के जो कि डाइमर के फॉर्म में रहते हैं. दो एटम मिल गए तब उनके ऊपर चार्ज जो आता है, भले डबल हो जाए, वो स्टेबल होता है. ए डाइमर इज स्टेबल, स्थायी होता है, बैठता है. Therefore, Mercurius is Hg2 2 plus, and एक एटम के ऊपर दो चार्ज है. तो यहीं पर ये ध्यान रहे कि लोअर वैलेंसी चार्ज, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी भी, is known as us and higher valency is known as ic. जैसे क्यूप्रिक Cu2 प्लस, क्यूप्रस क्या होगा? Cu प्लस, Cu प्लस, उसको हम Cu प्लस लिख देते हैं. Cu2 2 प्लस हम नहीं लिखते, but even though that is unstable. And like that, these are, and all alkali metals are cations which are unipositive. Alkali metal means सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ये हमको थोड़ा सा आइडिया है और तभी हम आगे बढ़ेंगे. इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम इन चीजों को रिवाइज करें. अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं, अल्कलाइन अर्थ कौन कौन से हैं, ये हम सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, और 11th में और आगे तो हम बहुत ज्यादा पढ़े.
alkaline earth में, they are dipositive. Then जैसा कि हम अभी बता रहे हैं, एक कंपाउंड के दो हिस्से, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. पॉजिटिव इज नोन एज कैटायन, एनायन, और negative part is known as anion. Now these negative parts are known as anions, list of anions: carbonate, sulfide, sulfide, NO3, chloride, bromide, iodide, and like that. There are a few anions which I have listed here. ये आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए. पहला काम तो ये है कि इसको लर्न करना पड़ेगा. अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज राइट इट, लर्न इट. मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसके आगे, इसके बिना तो काम करना, आगे अध्ययन करना थोड़ा जरा मुश्किल हो जाएगा. और जैसा कि मैं बता चुका हूं, दिस इज नॉट द एंड. ये लिस्ट तो बढ़ती ही चली जाएगी. और इससे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया भी है, आपको रेगुलरली पढ़ना है नियम से, और टाइम अप नहीं करना. रटना घोटना तो है ही नहीं, समझना है. जैसे अब आप देखें अपनी किताब में, किसी भी किताब में, टेक्स्ट बुक में, आई मीन, आखिर के पेज में, सीबीएसई के बुक के आखिर के पेज में, शायद पेज नंबर 321 या 22 कुछ ऐसा है, अपेंडिक्स दिया हुआ है. उसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए, बाकायदे उनके नाम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब दिया हुआ है. आप कृपया ये नियम बना लें कि रोज 5-5 एलिमेंट के नाम और उनके एटॉमिक नंबर याद रखें, सिंबल याद रखें, संकेत याद रखें. अब जैसे बी लिखा है, बी का क्या मतलब हुआ? बोरॉन. और O7, B4O7, 7 ऑक्सीजन और 4 बोरॉन मिल करके जब वो 2 नेगेटिव होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि ये परबोरेट आयन है. परबोरेट आयन. Now look here, F negative is fluoride ion, I is iodide ion, SO3 is sulfide ion, SO3 2 negative. अब SO3 और I में क्या फर्क है? SO3 भी एनायन है और I भी एनायन है, परबोरेट भी एनायन. I is only one atom which is negatively charged. Chloride, bromide, iodide, fluoride, each is having single negatively charged. ये एक एक एलिमेंट, एक एक एटम है. जबकि सल्फाइड में सल्फर और ऑक्सीजन मिला हुआ, नाइट्राइट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला, ऑफ कोर्स इन सर्टेन रेशियो. तो फर्क तो है. अब ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स एक्टिंग एज अ सिंगल एटम. ये एटम का समूह है जो कि एक एटम की भांति रासायनिक क्रिया में भाग लेता है. It acts like a single atom, even though it is a group of atoms, and of course charged. And there, since it is charged, we call it anions. But when it is group of atom acting like a anion, although it is an anion, we use another term as acidic radical. Group of atom which act like a single atom are very often termed as radical. Negative radical, ऋणात्मक हिस्सा, ऋणात्मक भाग, negatively charged portion, molybdate, acetate, oxalate, phosphate, permanganate, chlorate. तो ये सब आपको सीखना है along with the name of the element. ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. जिस तरह से हमको मैथमेटिक्स अगर हमें पढ़ना है तो हम शुरुआत में क्या करते हैं? नंबर्स याद करते हैं, गिनती याद करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, and then we need multiples, 2 2 ja 4, and that way. Similarly, this is the starting point to learn chemistry. And now, after learning the names of the element, their symbols, identifying the difference between atom and molecule, learning different parts of a cation and anion, of a compound, cation and anion,
we need to write the correct formula of a compound. And what should be the process for writing the correct formula of a compound? That has to be learned. Indeed. Now, I have given a simple method to write the correct formula of a compound. कंपाउंड में आपको ये ध्यान रहे कि कोई पॉजिटिव पोर्शन होगा जिसको हम कैटायनिक पार्ट बोलते हैं, और कोई नेगेटिव पोर्शन होगा जिसको हम एनायनिक पार्ट बोलते हैं। एनायनिक हिस्सा दोनों को हमने पहले पढ़ लिया है, याद कर लिया है, हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमको पहले वो आइडेंटिफाई, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सल्फेट कोई एक कंपाउंड होता है, और आप ये ध्यान रहे आपको कि जब भी किसी कंपाउंड का हम नाम देते हैं, नाम लिखते हैं, नाम बोलते हैं, नाम कहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पोर्शन का नाम पहले बोलते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, जैसे में अपना नाम लिखना है तो नॉर्मली क्या होता है, सरनेम बाद में लिखते हैं। उसी तरह से एल्यूमिनियम फर्स्ट एंड सल्फेट नेक्स्ट। एल्यूमिनियम सल्फेट जहां हमने कहा, हमको फौरन ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव पोर्शन एल्यूमिनियम है और नेगेटिव पोर्शन सल्फेट है। कैटायन एल्यूमिनियम है और सल्फेट एनायन है। जिंक नाइट्रेट हमने कहा, फौरन ये समझ में आना चाहिए दैट जिंक इज पॉजिटिव पोर्शन, NO3 is negative portion. So that way identify the positive and negative portion, cation and anion, and then write the symbol along with the charge for the cation. In case of aluminum, it is Al3 plus. And just on the right hand side, by the side of it, adjacent to it, you write the anion. Anion is sulfate. और सल्फेट हमने वहां देखा, हमने पढ़ा है, it is SO4 2 negative. It is a group of atom acting as a single radical. हमने क्या किया, हमने SO4 तो लिखा, 2 negative भी लिखा, लेकिन SO4 को within bracket शो कर, and the charges are written here. So this is the first step for writing the name of a compound. I've already given it here that in case of aluminum sulfate, sulfate is the negative part or anion, which is a group of atom acting like a single atom, that is an anionic radical. Therefore, has to be written within a bracket, small bracket. Now, what next? Then writing the formula becomes very simple. We have written Al3 positive, SO4 2 negative. And then what we do, we forget about the plus and minus here temporarily and cross transfer this number as a subscript. ये जो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 है, इसको हम सल्फेट के पास नीचे की तरफ लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर। तो ये 3 हम यहाँ पर ले आए, इट बिकम्स SO4 3, और जो सल्फेट के ऊपर जो नंबर लिखा था उसको हम एल्यूमिनियम के पास ले आए 2। माइंड इट, सामने नहीं लिखा, एल्यूमिनियम के सामने नहीं लिखते, इट इज ऑलवेज रिटन एज ए सबस्क्रिप्ट, नीचे की तरफ। Okay. Then the formula is Al2SO4 3, थ्राइस उसको हम। तो इस तरह से हम तमाम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के स्ट्रक्चर या फॉर्मूले हम लिख सकते। पहली चीज तो ये है, हम सिंबल पढ़ें, सिंबल याद करें, फॉर्मूला लिखना सीख लें, कैटायन की लिस्ट पढ़ लें, एनायन की लिस्ट सीख लें। दीज आर प्रीरिक्विजिट्स ऑफ प्रोसीडिंग अहेड टू लर्न further details about chemistry. Now, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अलग कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो तो हम एक अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे और तब हम बताएंगे, लेकिन अभी तो इतना करना बहुत जरूरी है। Then we come across acids and bases. Now,
This compound is known as a salt, inorganic salt. एसिड्स भी बहुत से हमको पढ़ना पड़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, like that a number of acids are there, एसिटिक एसिड। तो हम ये देखते हैं जब भी कोई हम एसिड का फार्मूला लिखते हैं या उसका हम कंपोजिशन स्ट्रक्चर हम समझते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें H जरूर होता है। बिना H के वो एसिड का फार्मूला होता ही नहीं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने ये देखा कि तमाम लड़कों को एसिड का फार्मूला ही लिखना नहीं आता। तो प्लीज correct yourself, you don't know, revise it. H is always there in an acid and it is a cation. एसिड अगर कहा जाता है तो आप समझ लीजिए कि उसमें कैटायन H है, H पॉजिटिव, एन पॉजिटिव पोर्शन पहले लिखते हैं। ऑफ कोर्स इन ऑर्गेनिक एसिड्स में थोड़ा सा कुछ अलग कंसिडरेशन होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में, वो हम बताएंगे बाद में। देन HCl is hydrochloric acid, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो सब आपको याद करना ही पड़ेगा। और ये H ऐसा होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है इससे, तो ये H अलग हो जाता है, it gets out, it is replaced by something else। या इसको हम सीधे सीधे अगर हम पानी में भी डिसॉल्व कर दें, मिला दें इसमें पानी, या एसिड को पानी में मिला दें, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा पानी में। कैसे अलग होगा, क्या होगा, that is altogether known as ionization, and we have to learn more details about ionization subsequently. Perchloric acid is HClO4, so like that you have to learn। और जिस तरह से एसिड्स में H होता है उसी तरह से बेसिस में OH negative, that is the anion for a base, and it again to be written in group within bracket most of the cases। सिंगल है तो कोई बात नहीं, OH हम लिख सकते हैं, NaOH we can write like this, क्यों एक OH है, लेकिन दूसरी कोई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH 3 times, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड like that। तो ये तो सब याद करना पड़ेगा। I give you another example here, just as aluminum sulfate is Al2SO4 3, sodium oxalate is Na2C2O4, sodium is the positive portion, C2O4 हम पढ़ चुके हैं is the negative portion। और जब एक चार्ज होता है सिंगल चार्ज, तो हम 1+ भी नहीं लिखते ना 1 लिखते हैं, 1 is normally omitted, it means that it is 1 single। Na+ लिखा, C2O4 2 negative। अब हमने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, ये जो नंबर है उसको हम सोडियम के साथ ले आए, Na2 हो गया, और C2O4 तो चूंकि एक है चार्ज, तो C2O4 को ऐसे Na2 C2O4। that is how we write the name of the compound in organic salt, acids and bases। Now before we get into anything else, further details are required to be learned। Here is an exercise for practice, please note it down, go through it, write the formula, correct formula, or if the formula is there, write the name। So again, I have given an example, that is magnesium phosphate। How do you make out the formula of magnesium phosphate? It is Mg3PO4 twice। Again the same thing, magnesium is the cation 2 positive, phosphate is the anion 3 negative। दोनों को पास पास लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये रेडिकल है, और ये नंबर हमने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, मैग्नीशियम फॉस्फेट। That is how
we carry on and proceed ahead. So, presently, we can close our learning at this stage, which is nothing but the review and the strategies for learning. And this is not the end. Subsequently, soon after, probably I'll be again with you and take up something more about atomic number, mass number, equivalent weight, and all other such calculations and details. Okay, thank you. Please do subscribe and wish you all the best.